بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے اور سچ بولنے اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی آج بات کر لیتے ہیں ناگن صاحبہ کی جو ہے وہ پہلے تو میں بات کہوں گی کہ یہ انصاف بی بی اور ناگن کتنی اچھی عورتیں ہیں یار، یہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، کتنی اچھی عورتیں ہیں، مطلب کہ ان کو کسی اپنے سگے رشتوں سے زیادہ ان کو کسی اور کے جو ہے وہ درد محسوس یہ لوگ کرتی ہیں یا دنیا والوں کو دکھاتی ہیں، اپنی بناوٹی چیزوں سے اور بناوٹی باتوں سے پاگل سمجھتی ہیں لوگوں کو کہ لوگ ان کی ان باتوں پر جو ہے وہ یقین کریں گے اور ہنستے ہوں گے لوگ ویڈیو دیکھ کر، اور یہ چیزیں ان کی دیکھ کر جو یہ آنسو بہاتی ہیں جھوٹے کسی تیسرے کے لیے، جیسے کل کی ناگن کی ویڈیو میں یہ بول رہی تھی کہ میں مطلب وہ پتہ نہیں کیا ڈی ڈی بھائی کو اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی طرف کرنا چاہ رہی ہیں، ڈی ڈی بھائی کے گھر میں زیادہ گھسنا چاہ رہی ہیں یا پتہ نہیں، جو بھی پلاننگ تو ان کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ہر ایکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ کوئی فلانا لڑکا سڑک پہ پٹ رہا تھا تو اس کے خون نکل رہا تھا اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا مجھے رونا آیا، مجھے دل بھر اس میں نظر آ رہا تھا، اور یہ والی ساری چیزیں یعنی ایموشنل بلیک میلنگ اور ایموشنل یعنی وہ چیزیں وہ کر کے یہ جو ہے نا وہ دکھاتی ہیں، دنیا والوں کو بیوقوف بناتی ہیں، شاید ساتھ میں اپنے بھائی کو بھی بنانا چاہ رہی ہیں یہ۔ بہرحال اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی، کیونکہ بلا وجہ بلا مقصد تو یہ کسی سے محبت بھی نہیں کرتی اور کسی کو کسی کے لیے اچھے جملے بھی نہیں بول سکتی۔ تو یہ فرما رہی تھی کہ وہ لڑکا پٹ رہا تھا تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور میں ہمیشہ جو ہے وہ اس بندر کو جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کو میں روکتی ہوں اور ہمیشہ کہتی ہوں کہ تم نئی کھڈوں میں گھسا کرو، لیکن میرا دل مجھے بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ مجھے شارق کو بندر کو بھیجنا چاہیے تھا، مجھے بھیجنا چاہیے تھا اس کو، تاکہ وہ ان لڑکوں کو مارتا، ان چاروں لڑکوں کو مارتا۔ تو یہ بھی کتنی فنی سی بات ہے کہ جو بندر ہے وہ 4 لڑکوں کو مارتا اور 4 لڑکے اس سے پٹ لیتے، یعنی وہ بندر یا سوچے کہ وہ جو لڑکا پٹا تھا وہ اس سے جو ہے کتنی پتلی حالت میں ہوگا جو وہ مطلب وہ پٹا ہوگا، اور یہ بڑا جو ہے باڈی بلڈر ہے کوئی جو یہ 4 لڑکوں کو مل کے مارے گا۔ مطلب ہنسی آتی ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے بھی یہ لوگ نہیں سوچتے، ڈھٹائی کی بے شرمی کی حد ہے کہ یہ لوگ بات کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یا ہنسیں گے، یا یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس بندے پہ فٹ ہوتی بھی ہے یا نہیں، یا یہ ہمارے ایکشنز پہ فٹ ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ مطلب جس کو اپنی سگی خالہ جس کے ساتھ یہ ہر وقت رہتی تھی، 24 گھنٹے رہتی تھی، اس کو اتنی تکلیف پہنچا کر، اور جب اس کو ستارہ نے آئی برو شیو کی تھی تب بھی اس کو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، یہی سننے میں آیا تھا اس کی ماں اور یہ جو ہے نا وہ خوشیاں منا رہے تھے، اور اس نے یہ بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جو وہ سب کو ہی یہ والی بات یاد ہوگی شاید، کہ اس کو کسی نے کہا تھا کہ کہیں اس کو جانی نقصان تو نہیں جائے گا ستارہ کو، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، وہ نہیں مرتی، وہ نہیں مرتی، وہ بہت ڈھیٹ ہے، پہلے بھی اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ عورت ہے اور یہ اپنے آپ کو کیا ثابت کری ہے کہ اس کا دل اتنا نرم ہے کہ یہ سڑک پہ ایک پٹتے ہوئے لڑکے جس کو یہ جانتی بھی نہیں ہے اس کے لیے اس کے دل میں رحم آئے گا اور آنسو بہیں گے۔ اس کو خالی جو ہے سڑک پہ جو کتے بلیاں اور سڑک پہ جتنے لوگ ہیں نا بس ان پہ رحم آتا ہے، جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں، جو لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جو لوگوں نے سنا ہے، جو اس نے کیا ہے، اس سے بالکل برعکس یہ چیز ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ جس کو اپنے سگے رشتوں سے جو ہے وہ اس کے لیے اتنا سخت دل کوئی کر سکتا ہے، اس کے لیے اس حسد و جلن رکھ سکتا ہے اتنے سگے رشتوں کے ساتھ، کہ جو ہے وہ جس کے ساتھ 24 گھنٹے یہ رہتی تھی، جس کو دوست مانتی تھی، اور 24 گھنٹے کا ساتھ تھا، کھانا پینا ہر چیز مطلب جو تھی، وہ اس پوزیشن میں آپ کسی کے ساتھ اتنا برا کرو تو آپ سوچو آپ کا دل کتنا سخت ہوگا، اور آپ کے دل میں کتنی جو ہے وہ نفرت اور بیڈ مطلب وہ ہوں گی، سوچیں آپ کے دماغ میں اس طرح کی ہوں گی
कि आपकी नेचर किस टाइप की होगी, और आप अपने आप को इतना हमदर्द बना रही हैं, इतना वो बना रही हैं, नरम दिल दिखा रही हैं ये वाली बात करके। हंसे ही होंगे तकरीबन तमाम लोग ही हंसे होंगे, शायद ही 2 3 या 4 कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग ऊपर से बिल्कुल खाली होंगे, जिन्होंने इसकी बात पे यकीन किया होगा। वो बात भी अगर छोड़ दें, जहाँ ये डीडी भाई की बात कर रही है, दिलबर की बात कर रही है, तो जो है जब डीडी भाई के मर्डर की बात सामने आई थी कि मर्डर की इन्हीं लोगों की, जिन लोगों के साथ ये, जिनके लाइवों में बैठकर और जिनके साथ ये बैठकर प्लानिंग करती थी और जिनके लाइवों में बैठती थी, उन्हीं लोगों ने ये बात की थी जब मर्डर वाली। तो तब इसने कोई भी वीडियो आके नहीं बनाई, तब इसका दिल नहीं हिला था, तब इसके जो है वो दिल पे जो है वो नहीं लगी थी, छुरियाँ नहीं घुसी थी कि इसके अपने सगे भाई के लिए जो ये वाली बात की गई थी। तो उस वक्त इसका दिल बिल्कुल भी नरम नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बात होती तो जो ये इतनी मोहब्बत करती है अपने भाई से, इतनी मोहब्बत करती है कि किसी लड़के को पिटता हुआ देख के इसको अपना भाई याद आ रहा है, तो वो हमें भी पता ही कितनी मोहब्बत करती है और कितनी नहीं करती। जब तुम अपने भाई के जो है वो मर्डर की बात सुन सकती हो, तुम बहुत कुछ सुन सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता अहम नहीं है, कोई जो किसी चीज़ की अहमियत नहीं। जो लोग खुद गर्ज और जिनके दिल में नफ़रत और बुग़्ज़ और जो है वो जेलसी होती है ना, वो लोग सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं, और ये औरत सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती है। तो दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, ठीक है नागिन, हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम कितनी रहम हो। और दूसरी बात कर लेते हैं बकवास बीवी की। बकवास बीवी ने भी कल जो है वो बड़े आंसू बहाए कि जो है वो हमारी जो रोमन सिस्टर है, हमारी जो सपोर्टर एक बहन है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अफसोस उस पे करूँगी कि अल्लाह ताला उनके हस्बैंड को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो वो बकवास बीवी जो है वो उनका हवाला दे रहे हैं कि नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर सभी लोग जानते हैं कौन किसकी कब क्या बात कर रहा है। तो वो जो है बड़े से कह रहे हैं कि पहले तो वो अपने जो है वो चच्ची की भतीजी के ऊपर, मुझे बड़ा अफसोस होता है किसी की ये चीज़ देखकर, ज़िंदगी और मौत का कोई वो नहीं है और ये हकीकत है और वो हकीकत है। और जो है वो रोमन सिस्टर का भी उन्होंने जो है वो जिक्र किया, इस तरह नाम लेकर नहीं, लेकिन एक हेटर सपोर्टर कह के कि वो उनकी किसी के जो है वो हस्बैंड की डेथ हुई है। तो मुझे बड़ा अफसोस है और आंसू जो है वो टपका रही थी। तो भाई तुम्हें जिंदों की फ़िक्र करो, तुम जो हो अफसोस करना अच्छी बात है, लेकिन तुम जैसी औरत ये बात अगर करे तो तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। तुमने तो अपनी बहन को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था, सगी बहन को, अपनी सगी बहन को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था। और एक मिनट के लिए तुमने ये नहीं सोचा था कि जो है वो जब उसने वो आईब्रो भी शेव की थी और वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल ही अपने आप को ख़त्म करने वाली थी, उस वक्त भी तुम्हारा दिल नहीं दहला था, उस वक्त भी तुम्हारा दिल नहीं दहला था। और तुमने जो है वो अपने मकासद को तुमने और तेज़ कर दिया था, और मतलब तुम संभली नहीं थी या तुम रुकी नहीं थी। गुस्सा होता है ना इंसान का, गुस्से में इंसान जब होता है तो चलो एक थप्पड़ लगा देता है या 2-3 बातें कह देता है, फिर उसके बाद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो बाद में उसको थोड़ा एहसास हो जाता है कि शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया या मैंने ज़्यादा कर दिया। लेकिन जब मुसलसल एक इंसान एक ही चीज़ कर रहा हो तो फिर उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना ही चाह रहा होता है। तो इस औरत ने अपनी बहन को जब इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि वो मौत के दहाने पर पहुंच गई, तो ये दूसरों के लिए आंसू बहाएगी और ये दूसरों के लिए हमदर्दी रखेगी। ये सारे ड्रामे जो है ना, ये सारे ड्रामे जो है वो लोगों को दिखा के, जो अगर आप ये समझती हैं कि लोग आपकी बातों पे यकीन कर लेंगे, वही कुछ लोगों के अलावा जिनके दिमाग ऊपर से बिल्कुल खाली डब्बा होंगे, जो इन चीज़ों को नहीं समझते होंगे, तो बस वही लोग होंगे। बाकी तो सब समझते हैं। ये बेवकूफ़ बनाना और दुनिया वालों को जो है वो अपनी ये चीज़ दिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल हैं। तो ये दोनों जो इन दो औरतों ने, जो नागिन और बकवास बीवी ने कल की वीडियो में जो कुछ दिखाना चाहा है, वो बिल्कुल भी जो है वो उनका फ्लॉप हो गई है ये चीज़। किसी ने भी मेरे ख़्याल में इस पर यकीन नहीं किया होगा, तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि सब इनकी असलियत जानते हैं अच्छी तरीके से।
ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं और कुछ नहीं करती हैं, और अपने जो है ना वो घुमा फिरा के बातें कर कर और जो असल बात होती है वो बात नहीं करती हैं, और ये दिखाना चाहती हैं कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं और हमसे जो है वो पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं। लेकिन सब इनकी असलियत 1 to 10 पूरा इनको नीचे से ऊपर तक हर चीज़ इनकी जानते हैं कि क्या है, किस तरह है, क्या करती हैं, क्या सोचती हैं और क्या फील किसी के लिए करती हैं और क्या कर सकती हैं। ठीक है, चले मैं यही अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, इसने आज की वीडियो में नागिन ने बोला मरियम सिस्टर्स को मतलब टॉन्ट मारी इसने कि जो है वो चलो अच्छा हुआ मैं जीत गई, तुमने मेरे पे बात करनी छोड़ दी और मैं आज जीत गई, तुमने आज बात मुझ पर नहीं की, जब तक तुम बात नहीं करोगी मैं भी बात नहीं करूँगी। तो भाई किसी गलतफहमी का शिकार आप ना हो। मरियम सिस्टर जो है वो जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हैं वो टॉपिक आपसे बहुत ज़्यादा अहम है। आपको ये गलतफहमी है कि आप जो है वो दुनिया की सबसे अहम पर्सनैलिटी हैं, तो ऐसा नहीं है। जब आप कोई चवल मारती हैं या कोई इस तरह की हरकत करती हैं तो आपको आकर सब बोलते हैं, लेकिन आपसे अहम भी दुनिया में और बहुत से टॉपिक हैं जिन पर बात की जाए। तो आप पर आपको अगर दम पर रखा जाए ना तो आप किसी गलतफहमी या खुशफहमी का शिकार ना हो, और ना ही इस खुशफहमी का शिकार हो कि आप जीत गई, यानी बस अपने मुँह से अपनी खुद ही अपने ही आप में कि मैं जीत गई। क्या चवल है यार, क्या मतलब क्या किस किस्म की औरतें मैंने दुनिया में कभी ज़िंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी जैसी ये है। क्या कहना चाहती है और क्या सबको पता है, इसको भी पता होगा कि लोगों को पता है ये बात, लेकिन बस बोल के जो है वो अपने आप को सेटिस्फैक्शन देनी है इसमें। चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।